Hi, good evening, one and all. Good evening, Shakil. Good evening, sir. Very good evening. Good evening. Good evening. So this is back. बिल्कुल. Good evening. All right. So uh, today we'll be discussing about overview of lead generation process, and then followed by we'll go for little deeper topic as well. अरे वो कहाँ Right. So we have few new members. Romita is there, and then I think Abhinav Yes. is there, right? So can Romita, can you please introduce yourself, and then we can take it little forward. Romita and Yes. yeah, Romita. Mm, Shakil, so basically, I had seen this ad in Facebook, Okay. and let me start video one. Just to introduce myself, then I'll put it off because I'll save on the bandwidth. So I've seen the advertisement on basically on the Facebook. Now, my objective to join this course is I already work as a project manager for a digital marketing team, Mhm. and my background is not digital marketing or social media marketing. I worked in implementation for a good 6 to 7 years of time. So Mhm. that consisted of Linux and MySQL and etc. Just give me a minute. Sure. Just give me a second. Yeah. Hey Mark, hi. Hi, we have a call. Just give me 5 minutes. I'll. Okay, so and that is a kind of my background that I have been working, and now it's been like a year. I have been shifted to digital marketing projects. Mhm. Now my concern is yes, I do understand the basics and I coordinate with the clients. That is not a challenge. But of recently, since it's been a lockdown time since approximately March 2020 and still now continuing on and off. So I have got opportunity to work in new projects like open market projects, not a full time. Mhm. Now there, I would like to go ahead with social media marketing on a greater scale and want to understand the scope that is available from India. So majorly my full-time works with the US clients and their way of doing things on Instagram and other platforms like Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. But I want to explore the probabilities and possibilities in Facebook and specifically on Facebook, where we are going for brand awareness or or conversions over social media platforms. All right. Uh, that is the only objective as of now. All right. Right. Thank you. Thank you very much for your brief Welcome. intro. Right. And we have Abhinav, a new member with us. So in case Abhinav, can you please introduce yourself? Yeah. Hello, everyone. Am I audible? Yeah, yeah, very much. Okay. Please don't mind. I'll not be able to switch on the video. That's okay. That's okay. There's no power. Yeah. Basically, I'm from Ranchi, Jharkhand. Mhm. Mm. And we run a coaching institute in Ranchi. It's basically for government exam preparations like Bank, PO, Railway, SSC, and all. All right. So, like one till 1.5 years back, we were into conventional marketing. Mhm. We were very aggressive in marketing, and we had a very good name in doing marketing. Like people used to know us ki they do very aggressive marketing, and Mhm. we had uh, um, done a lot of innovations and very new techniques for marketing. But most of them were
mostly conventional. I mean physical, not digital. Mhm. So because of lockdown, everything stopped. The coaching segment totally came to an halt. Mhm. And right now we are in a space that we don't have any option. Mm. We have to go for the digital thing. And for our institute only, we are mostly interested in like basically I am from computer science background, so I was aware of all these, but because of my engagements, I was never been able to explore any of these segments. Okay. So like I have already started exploring, and I have bought a few courses on Udemy, but Right. like the physical, I mean if somebody is in front of you and like teaching you, it's a completely different experience than learning from recorded lectures and all. Right. Understand. So that's the reason why I joined the course. All right. Thank you, Abhinav, and it's really nice to listen about. Like everyone among us is coming from various background, and then we understand digital and expect digital to serve us in a different way. यानी हम सबके सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और डिजिटल से एक अलग एक्सपेक्टेशन है, right? So beauty of digital is basically what we expect out of digital or digital media. There is something or other related for that particular segment or that particular solution what we are looking for. So in case we are looking for like as you said, like conventional to digital, uh, probably you were doing very good, but the way that change shift has happened in the market, that has forced us, वो या तो हमें ऑटोमेटिकली हम उस हर की तरफ जा रहे हैं या फोर्सफुली जा रहे हैं. अब Right. जैसे देखा जाए, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि जिस तरह से अगर आज से एक 5 साल पहले अगर मोबाइल की बात की जाए या 10 साल पहले मोबाइल की बात की जाए, तो जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी तो मोबाइल को इस तरह से देखा जा रहा था जैसे ये लग्जरी आइटम है. बट स्लोली ये क्या हो गया, ये एक यूटिलिटी बन के रह गया कि आज की डेट में अगर हम मोबाइल हमारा एक्टिव नहीं है या डेटा एक्टिव नहीं है तो शायद हम बहुत बेचैन हो जाते हैं. यानी लाइफ विदाउट इंटरनेट और लाइफ विदाउट मोबाइल शायद हम सोच नहीं सकते इस करंट सिनेरियो में. एंड लॉकडाउन के बाद, ये सारे पेंडेमिक के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है कि भाई कैसे हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करें. ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें या यूएस बेस्ड कंपनीज की बात करें या इंडियन कंपनीज में भी, इंडिया के अंदर भी कुछ अलग अलग तरह की कंपनीज थी जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुकी थी. बट लाइक दिस, वर्किंग फ्रॉम होम और ऑल टुगेदर टेली कम्यूटिंग बेसिस, या फिर सारा का सारा रिमोट वर्किंग हो, स्टूडेंट भी रिमोटली हो, टीचर्स भी रिमोटली हों, और फिर वो कोलेट होके कुछ डिस्कस कर रहे हों. और शुरू में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था, बट स्लोली हमने भी अपने आप को एडजस्ट किया और सिचुएशन ने भी हमको एडजस्ट करना सिखा दिया कि हम इसी के साथ कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे. तो नेवरदलेस यस, हम यहाँ पे जो आज हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एक तो ये है कि जो कोई भी बिजनेस है, यानी चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो बिजनेस यूनिट है, अल्टीमेटली उसको क्या चाहिए? उसको लीड्स चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, सेल चाहिए, और फाइनली वो कौन सा चैनल है जो कि उसको ज्यादा बेनिफिट देता है और ज्यादा बिजनेस देते हुए उसको हमको एक डिसेंट आरओआई तक लेके जाता है. राइट? आप लोगों में से बहुत सारे लोग या तो एड्स देखे हैं फेसबुक पे तब हमसे कनेक्ट हुए, या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट किया गया तब कनेक्ट हुए. यानी any means or other we have not met each other on a physical platform, but yes, we got connected with one way or the other, and that is what we expect to happen for our business also. यानी आप भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि जिस वजह से हम कनेक्टेड हुए हैं, जिस तरह से हम कनेक्टेड हुए हैं, उसी तरह से हम अपने प्रोस्पेक्ट्स और बिजनेस प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट हों. ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है. मुमकिन है बहुत सारी चीजें आप जानते हो, जैसे अभिनव ने भी कहा, रोमिता ने भी कहा, जिया ऑलरेडी बिजनेस रन कर रही हैं, ठीक है, या प्रशांत हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी रन करते हैं. राइट? तो ये अलग अलग लोग अलग अलग सेगमेंट से आए हैं, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई वो डिजिटल मीडिया को लर्न करें वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. तो हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल लीड को हम किस तरह से हम देखते हैं, लीड है क्या, और लीड किस तरह से जाएगा, और लीड को किस किस प्लेटफॉर्म से हम जनरेट कर सकते हैं, और फिर फाइनली
हमारे जो डेज होंगे वो किस फॉर्मेट में हम लेके जाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से एक पीपीटी है वो मैं शेयर करता हूँ और उसके बाद हम डिस्कशन फॉर्मेट में जाएंगे, सो दैट जहाँ पे भी हम उसको अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ें, रादर देन कि हम एक मोनोटोनस मैं जो है लेक्चर देता रहूं और आप सुनते रहें। उस हिसाब से नहीं, हम इसको अंडरस्टैंड करते हुए चलें। और मैं मान के चल रहा हूँ कि हम स्मॉलर बिजनेसेस के लिए जो वर्कआउट हो रहा है, लार्जर इंटरप्राइजेस के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बट अगर हम बेसिक लेवल पे हम स्मॉलर बिजनेसेस को अगर हम समझ लेते हैं तो अपने आप को ट्रांसलेट कर सकते हैं लार्जर बिजनेस के अंदर। तो अगर हम बात करें कि सेल्स लीड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन डाला हुआ है, बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेल्स लीड के बारे में हमारा क्या मतलब, व्हाट वी अंडरस्टैंड एज ए सेल्स लीड, एनीवन, हम लोग आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो ऑन करना चाहें वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करके बोलना चाहें ऑफ करके बोल सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। बट मेरा एक इंटरेक्टिव सेशन लेने का ये पर्पज है कि हम समझें एक दूसरे को और एक टर्मिनोलॉजीज को समझें, उसके बाद हम इसको लेके आगे बढ़ें। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि सेल्स लीड का क्या मतलब है, तो उसके लिए एनीवन अमंग यू, व्हाट विल बी द आंसर? The lead at the end which generates business. अच्छा, sales lead. ओके, जो एंड हमें एंड में बिजनेस लीड वो है जो कि हमें एंड में बिजनेस दे सकता है। यस, रोमिता हैज रेज्ड हर हैंड। Basically, a lead from business standpoint will हम वही lead generate करना चाहेंगे, something which is relevant, और जहाँ से एक in something comes in return of the lead. So that can may or may not be a profit, but वहाँ से इनकम आना चाहिए। जी, राइटली सेड। हम लाइक, सो अगर देखें जो इश्तियाक ने कहा है, इश्तियाक ने क्या कहा, लीड वो है जो कनेक्ट आपको बिजनेस में कन्वर्ट होता है, कुछ पैसे दे जाए। रोमिता ने क्या कहा, कोई ऐसा कनेक्ट या कोई ऐसा मतलब नाम या डिटेल जो भी है कि इमीडिएट बिजनेस ना दे, लेकिन अल्टीमेट जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो। एनीवन एल्स? प्रशांत जी, आप फार्मास्यूटिकल के काफी बड़े, आपके हिसाब से लीड क्या होगा? Sir, lead means at least you are getting a customer, whether you get this business or not, hardly makes any difference, but you at least you get a customer, so accordingly you can convert him into your lifetime customer. गुड। तो कोई एक ऐसी चीज जो कि आपको, कोई एक ऐसा कनेक्ट जो कि एक नया नए लोगों से आपका कनेक्शन हो, जो आपके साथ कनेक्टेड हो, या तो वो अभी आपके साथ बिजनेस करें या फ्यूचर में आपके साथ एज ए बिजनेस वैल्यू जनरेशन आपके साथ कनेक्ट हो, राइट? तो ये एक तीसरा पर्सपेक्टिव निकल के आ रहा है। एनीवन एल्स? गौरव या आशीष, आप लोग अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो। सेम सर, जैसा प्रशांत जी ने कहा है, सेम एज यूजुअल वैसे ही है। ओके, कुछ चेंज जैसे कुछ अलग से कुछ नहीं। जी जी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम समझें तो ये जैसे कहते हैं कि कोई लीड, अगर हम क्या नाम है, स्पाई टाइप की अगर आप मूवी देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जहाँ की थोड़ा सा सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, तो वहां पे क्या रहता है, लीड इज समथिंग जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कनेक्ट करता है, कोई क्लू देता है, राइट? तो मैं लीड को भी उसी फॉर्मेट में लेता हूँ कि ये एक क्लू है जो कि आपको उन लोगों तक कनेक्ट करता है या उन लोगों से कनेक्ट करता है जो कि आपका ऑडियंस हो सकता है अभी या बाद में, जो आज उसका इंटरेस्ट हो सकता है या फ्यूचर में हो सकता है, और फाइनली वो प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट होके और बिजनेस में कन्वर्ट हो। अब लीड क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है, बिजनेस क्या है, इसको तीन टर्मिनोलॉजीज को अगर हम समझने की कोशिश करें। लीड हमारा रॉ फॉर्मेट है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैंपेन रन किया फेसबुक के ऊपर और हमारे पास 50 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, राइट? सो दैट बिकम्स लीड। अब प्रोस्पेक्ट क्या हुआ? प्रोस्पेक्ट ये हुआ कि उनसे बात किया, उनको प्राइस बताया, उनको सब्जेक्ट बताया, उनकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद उनको समझ में आया यस आई शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो ये क्या हो गया, प्रोस्पेक्ट हो गया। यानी कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि उनको आउटकम क्या मिलने वाला है, इसका प्राइस क्या होगा, इसका टेन्योर क्या है और इसका आउटकम क्या निकलने वाला है, ये उनको पता है। जब वो बैक्ड बाय बाइंग पावर हो जाता है, यानी जब उन्होंने पे कर दिया तो वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया।
अब यहाँ पे है कि कुछ इंस्टेंट बिजनेस होगा, कुछ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होगा, क्लोजर हो चुका है, यानी दे हैव डिसाइडेड दैट यस आई शुड ऑप्ट फॉर दिस कोर्स, आई शुड बाय दिस प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट या सामान खरीदना है, लेकिन अभी नहीं खरीद रहा हूं, मैं 1 महीने के बाद खरीदूंगा, 15 दिन के बाद लूंगा, या 20 दिन के बाद लूंगा, या 2 महीने के बाद लूंगा। तो लीड इज समथिंग विच इज रॉ इन नेचर, बट आपने जो कुछ डिफाइन किया उसके हिसाब से उनका कुछ इंटरेस्ट लेवल डेवलप हुआ, आपने एडवर्टाइज किया, उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो क्या हुआ, लीड हुआ। जब वो प्रोस्पेक्ट के अंदर कब कन्वर्ट होता है, जब वो डिटेल समझने के बाद, प्राइसिंग और कॉस्टिंग समझने के बाद स्टिल उसकी रिक्वायरमेंट बनी रहती है, वो प्रोस्पेक्ट है। जब वो आपको पैसे दे देता है, परचेज कर लेता है, बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लीड्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। ये एक लाइफ साइकिल है, यही प्रोसेस को हम अपने पूरे साइकिल के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर या डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, इन्हीं तीनों की तरफ हम काम करते हैं। यानी सबसे पहले हमें अट्रैक्ट करना है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है, फिर उनको प्रोस्पेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, फिर फाइनली बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। सो दैट इज व्हाट इन टिपिकल टर्म्स हम इसको सेल्स लीड के बारे में हम कहते हैं। अब जैसे हम इस चीज के बारे में अगर हम देखेंगे कि जो एक प्रोस्पेक्ट है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर लें या ऑनलाइन या ऑफलाइन मीडिया की अगर हम बात कर लें, तो जितना ज्यादा लोग आपके बारे में जानते हैं, जितना ज्यादा लोग आपके बारे में जानना शुरू होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वो कहां से जानेंगे, वो या तो आपको वेबसाइट से जानेंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानेंगे, या अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस डाला है, फेसबुक पे आपने स्टोरी में डाला हुआ है, अलग अलग चीजें हैं। तो लोग देख के, जितना ज्यादा लोग आपको देखते हैं और ट्रैफिक बिल्डअप होता है, तो फर्स्ट लेवल पे सिर्फ क्राउड गैदरिंग होता है। वो क्राउड, जैसे आप मेले में या किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, तो हर दुकान पे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वहां मौजूद होते हैं, हर दुकान पे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे प्रॉस्पेक्ट हैं, या सारे के सारे लीड हैं, सारे के सारे प्रॉस्पेक्ट हैं, या सारे के सारे कस्टमर होंगे। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जो बस गए हुए हैं, बस वो वॉकिंग करते हुए चले जाते हैं, अच्छा गए देखे, उनको खरीदना नहीं है, वो श्योर है कि उनको खरीदना नहीं है, बट स्टिल दे सी इट। फिर भी लोग इस तरह की ऑडियंस को भी इंटरटेन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है, पता नहीं इसमें से कौन उनका प्रोस्पेक्ट में से और कौन उनका फाइनल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। तो ओवरऑल सबसे पहला जो एक्टिविटी होता है, जो डिजिटल वर्ल्ड में सबसे पहला एक्टिविटी होता है, वो ट्रैफिक बिल्डिंग होता है। इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने पेज पे, आप अपनी वेबसाइट पे लेके आए। अब ये ट्रैफिक जितना ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा आपको आपकी इंक्वायरीज जनरेट होंगी। हाँ, अगर हम ट्रैफिक किस तरह के लोगों का चाहते हैं, अगर हम वहां पे अपने पैरामीटर सेट करना शुरू कर दें, तो हमारे लिए ट्रैफिक तो जरूर कम होगा, लेकिन हमारा लीड, ट्रैफिक टू लीड के अंदर थोड़ा सा रेशियो अच्छा रहता है। बट फिर भी शुरू के टाइम में अगर हम ये समझते हैं कि हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो जिसको कहते हैं कि हम ओपन मार्केट में अपने आप को सर्कुलेट करते हैं, पॉपुलेट करते हैं, और वहां से ट्रैफिक बिल्ड करते हैं, और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में डिफाइन करते हैं कि है क्या ये। तो सबसे ज्यादा आपको जो सेल्स फनल और प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रैफिक विच विल बी लार्जर इन नंबर, वहां से लीड्स थोड़े से कम हो जाएंगे। यानी अगर 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि सिर्फ 50 लोग आपको अंदर इंटरेस्ट डेवलप किए होंगे कि भाई मैं इसको और मजीद और ज्यादा जानना चाहता हूं। तो जिन लोगों ने भी ट्रैफिक के बाद ये कहा कि मैं आई वांट टू नो फर्दर मोर, मैं और जानना चाहता हूं, वो लीड हो गया। वो चैट पे आ सकता है आपके पास, वो व्हाट्सएप पे आ सकता है, वो ईमेल पे आपके पास आ सकता है, या फॉर्म फिल्स के जरिए से आ सकता है, या नॉर्मल सिचुएशन में वो गूगल मैप पे या कहीं से भी वॉकिंग करते हुए आपके ऑफिस तक आ सकते हैं। तो 1000 में से 50 लोग जो इंटरेस्ट शो किए, वो लीड हो गया। अब जब आपने एक्सचेंज किया इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो कंटिन्यू कर गए, जिन्होंने कहा कि आप प्रपोजल शेयर करें B2B के अंदर या फिर नॉर्मल सर्विसेज के अंदर हैं, या बिगर इक्विपमेंट्स की बात करें, तो वो कहते हैं आप अपना प्रपोजल सबमिट किए। तो ये जो प्रपोजल सबमिशन का प्रोसेस होता है, ये प्रोस्पेक्ट हुआ। अब आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट डे और फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ या फर्स्ट ईयर में ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑडियंस के लिए कि कौन सा ऑडियंस हमारा लीड से प्रोस्पेक्ट में आ सकता है। बट उनके बाइंग पावर और नेचर को जब आप रिव्यू करना शुरू करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ पीपल के, तो आपको समझ में आता है कि इस तरह के लोग अगर आ रहे हैं तो वो कन्वर्ट नहीं होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ रियल एस्टेट का, यानी फ्लैट की एक इंक्वायरी, कहीं पे भी एक 3 BHK या 4 BHK या 2 BHK का फ्लैट दिख रहा है, अब वहां पे जो इंक्वायरी जनरेट होती है, लोगों ने देखा, ऐड देखा, इधर उधर देखा और फोन करते हैं, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि जो फोन कर रहा है वो आपका लीड हो, वो जानना चाह रहा है, कैजुअल भी जानना चाह रहा है कि भाई आजकल क्या चल रहा है। बट जब उनसे बात करने के बाद आपको ये पता चलता है कि आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस एरिया में देख रहे हैं आप, आपका बजट क्या है, और आर यू बाइंग इट ऑन योर ओन, और या फिर आप लोन पे ले रहे हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस को जब आप वैलिडेट करते हैं तब आपको समझ में आता है, या आप अगर इस तरह का इंक्वायरी किए हैं तो जो रियल एस्टेट बेचने वाले होते हैं उनको समझ में आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट अभी है या समटाइम्स लेटर है। एक बिल्डिंग 2 साल में कंप्लीट होती है और आपने जस्ट ऐसे ही रिव्यू किया, नहीं मैं देख रहा था कि भाई कितने में मिलेगा। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप 6 मंथ्स में परचेज करने वाले होंगे, या आप परचेज करने वाले 2 साल बाद हैं, 3 साल बाद हैं, लेकिन अभी से देखना चाह रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे जैसे ये टेन्योर बढ़ता जाता है वैसे वैसे लीड की क्वालिटी बढ़ती या घटती जाती है, वार्म, हॉट या कोल्ड के बस्ते में वो चला जाता है। तो लीड के बाइंग पावर में जब तक कन्वर्ट होगा, उसका टेन्योर को देखते हुए लीड को इमीडिएट, नेक्स्ट या लॉन्ग टर्म लीड के अंदर लेके जाएंगे। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रैफिक ज्यादा होगा, उसके बाद लीड्स होगा, फॉलोड बाय प्रोस्पेक्ट्स होंगे। अब जब रियल एस्टेट के अंदर ही, फ्लैट के अंदर ही जब प्रोस्पेक्ट से कोई वेंचर वाला बात कर रहा है और उस सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहता है, और ये कहता है कि भाई हमारे पास बैंक की लोन फैसिलिटी भी है, ये भी है, वो भी है, 10 चीजें वो पूछता है, उसमें से 5 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है। आप सर्विस क्लास हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अलग अलग नॉर्म्स हो जाते हैं। तो वहां पे जाके फिर ये समझ में आता है कि अरे ये एलिजिबल ही नहीं है लोन के लिए, लेना तो चाह रहा है लेकिन ये एलिजिबल नहीं है, तो ये नहीं ले पाएगा, तो इसलिए वो लीड के पास से ही वो खत्म हो जाएगा, वो प्रोस्पेक्ट में नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह से हर बिजनेस को अपने पैरामीटर को सेट करना पड़ेगा कि ट्रैफिक टू लीड्स, लीड्स टू प्रोस्पेक्ट एंड फाइनली प्रोस्पेक्ट टू कस्टमर, राइट। होप आई वाज एबल टू क्लैरिफाई कि कैसे हमको इन चीजों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होना होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे जैसे मैंने ये कहा कि लीड हमको आ गया, अब क्वालिफाइड लीड्स के लिए क्या है, क्वालिफाइड लीड्स के लिए प्री डिटरमिन्ड पॉइंट जो कि मार्केटिंग डिटर्मिनेंट्स है उसके हिसाब से आप डिफाइन करेंगे कि वो लीड कन्वर्ट हो, सेल में कन्वर्ट होने के क्या पॉसिबिलिटी है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहली चीज ये है कि बायर्स पर्सोना को आपको डिफाइन करना पड़ेगा और ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अब बायर्स पर्सोना क्या है, यही एक क्रिटिकल फैक्टर है जो कि आपको डिजिटल हो या ऑफलाइन हो, ये डिफाइन करता है कि आप राइट काइंड ऑफ पीपल को राइट टूल से अगर टारगेट करेंगे तो आपका सेल ज्यादा होगा, आपका कन्वर्जन अच्छा होगा, लॉसेस कम होंगे और लीकेज ऑफ बजट भी आपका कम होगा। इसलिए आपको सबसे पहले बायर्स पर्सोना को डिफाइन करना पड़ेगा। अब बायर्स पर्सोना कहते किसको हैं, वो उसमें से आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोगों को एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ रफ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हैं अगर कोई करना चाहें तो। आप लोगों में से कोई भी बायर्स पर्सोना को डिफाइन कर सकते हैं क्या, एक एग्जाम्पल देते हुए, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देते हुए बायर्स पर्सोना को अगर डिफाइन कर सकें, सो आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम ओके फाइन टू दैट लेवल। तो एनीवन, सुशांत जी हैं, इश्तियाक हैं, पूनम दीदी हैं, या फिर गौरव हैं, या आशीष हैं, या रोमिता है, एनीवन। तो आपके हिसाब से बायर्स पर्सोना एक पर्टिकुलर एग्जांपल के देते हुए क्या मतलब बनता है इसका? एनीवन और शैल आई कंटिन्यू? Sir, customer choice can be called as buyer's persona. कस्टमर्स चॉइस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको। For example, their likes, their hobbies and all, और उसके अलावा उनकी जैसे हर चीज को, प्रोडक्ट्स को लेके हर किसी की अलग 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 चॉइस होती है, तो उसको अपन बायर्स पर्सोना मान सकते हैं। जैसे आपने मुझे एग्जांपल दिया अभी फ्लैट्स के बारे में, रियल एस्टेट्स के बारे में, तो अगर कोई चाहता है कि वो 3 BHK लेना चाहता है तो वो उसका बायर्स पर्सोना के अंदर क्या आ जाएगा?
अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, फिर आप लोग समझिए कि क्या हो सकता है। एक 3 BHK का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसी का एग्जाम्पल को मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ, सो दैट एग्जाम्पल का एक स्टोरी बिल्डअप हो जाए वहां पे हमारा। 3 BHK को टारगेट करने के लिए, मार्केट करने के लिए हमारा ऑडियंस कैसा हो, यानी जो मार्केटर है, जो एडवर्टाइजर है, वो अपने बायर के क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है कि कम से कम वो इस इनकम ग्रुप का हो। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो कम से कम उसकी एक 12 लाख से 15 लाख रुपए की टर्नओवर, यानी 12 लाख से 15 लाख उसका पर एनम उसकी सैलरी हो। फॉर एग्जाम्पल, यानी अगर एक फ्लैट अगर 60 लाख रुपए का फ्लैट है या 80 लाख का फ्लैट है या 50 लाख का फ्लैट है, तो कितना लोन पे मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल 70% लोन उठा सकता है। तो 60 लाख का 70% विच इज आई थिंक 42 लाख के आसपास है, जो कि बैंक से लेना है। अब बैंक से इतना लेने के लिए उस आदमी का पर एनम इनकम XYZ होना चाहिए, जो कि डिफाइन करते हैं। तो अब आप क्या डिफाइन कर रहे हैं कि उसका इनकम डिफाइन कर रहे हैं कि जो आपका बायर है उसका इनकम कम से कम इतना, अगर सैलरीड है तो कम से कम इतना हो, और एटलीस्ट वो एक 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में होल्ड कर रहा हो ना। 5 साल या 10 साल का जॉब एक्सपीरियंस होल्ड कर रहा हो। इसका क्यों हमें रिक्वायर्ड है? इसका इसलिए रिक्वायर्ड है कि उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या है कि वो अपने EMI को पे कर पाएगा या फिर अपने जॉब को मेंटेन कर पाएगा। समझ रहे? तो ये एक इनकम क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए बायर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो बायर्स पर्सोना हुआ। एक हुआ हमारा इनकम। दूसरा, अगर मान ले कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जो कि ये चाहती है कि फॉर एग्जांपल जैन कम्युनिटी एक जगह सोसाइटी बिल्डअप कर रही है और वो ये चाहते हैं कि मेरे पास जो भी कैंडिडेट्स आए, मेरे पास जो भी आए, वो जैन हो, वो जो है यानी नॉन वेजिटेरियन ना हो और जैन हो। तो अब उन्होंने जो डिफाइन किया वो बायर्स पर्सोना डिफाइन किया कि कोई भी इंक्वायरी इससे अलग हटके आती है तो वो हमारा बायर है ही नहीं, हम उसको टारगेट भी नहीं करना चाहते, हम उसको बेचना भी नहीं चाहते। और मान ले कि हम चाहते हैं कि फैमिली जो है छोटी फैमिली हो, ठीक है, नॉट मोर देन 2 किड्स, उसके पास एक से ज्यादा गाड़ी ना हो, कि पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पता चला घर में अगर 4 मेंबर हैं तो 4 टू व्हीलर है, दो 4 व्हीलर है। आप ये कह रहे हैं कि भाई आपको इतना ही स्पेस दिया जाएगा, दिस इज इट। तो जो ये क्वालिटी आप डिफाइन करते हैं कि किस तरह के बायर आप किस तरह का बायर एक्सपेक्ट करते हैं, वो बायर पर्सोना कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेवलॉन एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ब्यूटी प्रोडक्ट रेवलॉन लॉन्च करता है, या लैक्मे लॉन्च करता है, या फेयर एंड लवली लॉन्च करता है। तो ये 3 अलग अलग ब्रांड है। तो जैसे मैंने रेवलॉन कहा, बायर पर्सोना क्या आता है, किस तरह के बायर्स होंगे? वो रेवलॉन के ब्रांड को परचेज करने वाले किस तरह के लोग होंगे? एनीवन? हाई इनकम ग्रुप होगा सर एक तो। बिल्कुल, चलिए एक हाई इनकम क्लास में आप लोग ज्वाइन किए रहते हैं। वो लिविंग इन बंजारा हिल्स इन हैदराबाद। इलेक्शन कितने घंटे का रहता है? जी जुबली हिल्स आल्सो सर। चलिए ठीक है, जुबली हिल्स पे रह रहे हूँ, चलिए मैं मान लेता हूँ। मतलब ये है कि हम जब मोमेंट हम रेवलॉन की बात किए तो हमारे पास आ गया थोड़ा सा हायर फैशनेबल, ट्रेंडी, हाई इनकम ग्रुप, वो उस तरह के लोग आ गए। अगर हम लैक्मे की बात करें तो अफोर्डेबल वुमेन्स ग्रुप। अफोर्डेबल वुमेन्स ग्रुप, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और अगर हम फेयर एंड लवली की बात करें तो जनरलाइज सर, राइट। तो बायर्स पर यस, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, बायर्स पर्सोना का यही मतलब हुआ कि नाम लिया तो कौन से बायर हमारे दिमाग में आ रहे, उसका इनकम आ गया, उसका सेगमेंट आ गया, उसका अफोर्डेबिलिटी आ गई, और वो रिपीट बायर अगर होगा तो इसका मतलब उसकी इनकम रेगुलर होंगी। ठीक है सर, एज ग्रुप भी आएगा इसमें। हाँ, एज ग्रुप भी आ सकता है, एज ग्रुप भी आ सकता है, 18 टू राइट, एज ग्रुप भी आ सकता है। 50। हाँ ठीक है, वो एक चीज। तो हम डिफाइन कर रहे हैं ना कि भाई ये अगर हम इस तरह के प्रीमियम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो एज ग्रुप भी आएगा, इनकम भी आएगा, और इंडिपेंडेंट भी आएगा। जो लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ अर्निंग हैं, वो शायद इस तरह के प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करते हैं, इंस्टेड कि अगर मैं फेयर एंड लवली की बात करूं तो पता चला जो है टीनेजर्स जो रहते हैं वो भी यूज कर लेते हैं, चलो भाई किसी भी चीज में यूज कर लिया, बोरोलिन हो गया या जो भी है यूज कर ले रहे हैं। तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट, जो कि क्रीम ही हो सकता है,
फेयरनेस क्रीम ही है, ब्यूटी फेयर एंड लवली भी फेयरनेस क्रीम है, लैक्मे का भी फेयरनेस क्रीम है, और रेवलॉन का भी मान लेते हैं कि एक कोई फेयरनेस क्रीम है। बट जैसे ही हमने नाम लिया तीनों अलग अलग सेगमेंट में बट गया। वही चीज है कि एक कंपनी हो सकती है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना सकती है, लेकिन ऑडियंस उसका अलग अलग होगा। तो ये जो ऑडियंस डिफाइन करना है, इसी को बायर्स पर्सोना कह रहे हैं। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि यूज अवेलेबल इंफॉर्मेशन। उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। आपको डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कहता है और ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप एक बार पर्सोना को डिफाइन किए तो उससे मिलते जुलते लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, या उसी तरह की दूसरी कंपनी जो कि अपना डिफाइन कर रखी है ऑडियंस को, उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है इन द सेंस 18 एंड अबव, 18 to 25 के लिए एक हो जाता है, 25 to 35 के लिए एक हो जाता है, 35 to above अलग तरह के प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि चाहे वो मेल ब्यूटी प्रोडक्ट हैं या फीमेल ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, सबका अपना अपना क्लास है, सबका अपना अपना एज सेगमेंट, एज ग्रुप और सेगमेंट है, राइट। उसी तरह से आपका क्वालिफिकेशन, उसके क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन के दो मतलब है, एक तो ये है कि जो कि आपने पैरामीटर सेट किया है उस पर कौन क्वालिफाई कर रहा है, दूसरा ये है एजुकेशन लेवल को भी क्वालिफिकेशन के बारे में कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं और हाई एंड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो किस तरह के लोग उसको अफोर्ड कर रहे हैं, किस तरह के मतलब क्या एजुकेशन के लोग उसको अफोर्ड कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत डिफाइन करता है, क्योंकि एजुकेशन भी बाइंग बिहेवियर को चेंज करता है। तो हमको उस क्वालिफिकेशन के बारे में बात करना है, ठीक है। उसके बाद डिटरमिन वेदर मार्केटिंग कैन डिलीवर लीड्स टू सेल्स। ये समझना हमको होगा, ये हमको समझना होगा कि हमारा जो है, जो भी हम लीड जनरेट कर रहे हैं वो सेल में कन्वर्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ आपको एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 4 व्हीलर परचेज करूँ, ठीक है। मैं जाके अल्टो भी परचेज कर सकता हूँ, मैं नैनो भी परचेज कर सकता हूँ, मैं जो है स्विफ्ट डिजायर भी परचेज कर सकता हूँ। थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं जो है दूसरा कार पे चला जाता हूँ, उसके बाद जो है मैं और आगे गया 10 लाख वाले कार में चला गया, फिर उसके बाद मैं स्कॉर्पियो पे चला गया, या फिर जो है इस पे चला गया, राइट, क्या नाम है, एक्सयूवी पे, एक्सयूवी हो गया, या फिर आपके अलग अलग कार सेगमेंट है। तो ये जो सेगमेंट ऑफ कार है, आप देखें कि इंक्वायरी मेरी ये है कि भाई मैं 4 व्हीलर खरीदना चाहता हूं, लेकिन BMW वाला आपके इनकम, आपके क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशन को सुनने के बाद क्या वो आपके अंदर इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बाइंग पावर नहीं हो, लेकिन वो नॉर्मल शेड्यूल समझते हुए ये समझता है कि जो लोग इस तरह के लोग हैं, जिनको कि ट्रेंडी भी होना है, जिनको फैशनेबल भी होना है, मार्केट में उनको एक रेपो भी अपना बताना है, अपना एक रसूख भी बताना है कि आई एम क्लास मेंबर, उस तरह के लोग इसमें जाते हैं। वेयर एज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्क्रैप के बिजनेसेस में भी हैं, कबाड़ी वाले जिसको कहते हैं, उनके पास करोड़ों का माल होता है, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल अप्रोच में ही चलना पसंद करते हैं, राइट। तो आपकी इंक्वायरी सेल में कन्वर्ट होगी नहीं होगी, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइफ साइकिल ऑफ योर इंक्वायरी को देखते हुए, लीड के देखते हुए आप ये डिफाइन करेंगे कि हाँ ये होगा। देन आप उसका आउटकम देखिए, वो कितना सेल में रिफ्लेक्ट हुआ, उसको रिव्यू कीजिए, फिर अपने परफॉर्मेंस को रिवाइज कीजिए। तो इस पूरे प्रोसेस को क्वालिफाइंग मैट्रिक्स कहते हैं, यानी आपको एक मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा कि उसका इनकम ग्रुप क्या हो सकता है, उसका एज ग्रुप क्या हो सकता है, वो रेसिडेंशियल प्रेफरेंस उसका क्या हो सकता है, वो नॉर्थ इंडियन लोग हो सकते हैं, साउथ इंडियन हो सकते हैं, वो कॉस्मोपॉलिटन के अप्रोच वाले लोग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो पूरे मैट्रिक्स को डिफाइन करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा एड परफॉर्म नहीं कर पाया। यानी आपको एक होर्डिंग एड देना है, आपको एक बड़ा सा होर्डिंग लगाना है, और होर्डिंग जो लगाने के लिए आपको जगह है, फ्लाईओवर के आसपास आप होर्डिंग लगाते हैं मोस्टली, जहां पे ट्रैफिक पे सिग्नल के ऊपर लोग रुकते हैं, यानी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए लोग रुकते हैं, उसके आसपास आप देखिएगा कि होर्डिंग ज्यादा होती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि लोगों का अटेंशन ग्रैब करता है वो मोमेंटली, लेकिन जब फ्लोटिंग ट्रैफिक में होते हैं तो वहां पे आपको उस तरह की चीजें नहीं होती हैं। तो अगर
आपने अपना होर्डिंग ऐसी जगह लगाया जहां के लोग सिर्फ जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो आपको क्या होता है, आउटकम नहीं निकलता। उसी तरह से अगर आपने अपना एडवर्टीजमेंट उस प्लेटफॉर्म पे लगाया जहां की लोग कुछ और कर रहे हैं, वहां शॉपिंग नहीं कर रहे, वहां सीरियस बायर्स नहीं जा रहे, लेकिन बस कैजुअली न्यूज पढ़ रहे हैं, बीच में से एक और आ गया, वो स्क्रॉल करके आगे चले गए, तो अगर इस तरह का पैरामीटर है तो आपका जो क्वालिफाइंग मैट्रिक्स है वो परफॉर्म नहीं करेगा। लीड्स आपके पास बहुत आ सकती हैं बट कन्वर्ट सेल में नहीं होंगी। जब सेल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी तो आप क्या होंगे, आप कहेंगे कि ये प्लेटफॉर्म काम नहीं किया। सो इट्स नॉट दैट ये प्लेटफॉर्म काम नहीं किया, इट्स बिकॉज हमने बायर्स पर्सोना को डिफाइन नहीं किया प्रॉपरली, हमने अलग अलग इनकम ग्रुप को लिए अलग अलग मैसेजिंग नहीं बनाया हमने, राइट। तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि आप क्वालिफाइंग मैट्रिक्स के प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रिव्यू कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी लीड जनरेशन प्रोसेस में, बीट एनी मीडियम, ये ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, फेसबुक हो, गूगल हो, ईमेल हो, यूट्यूब हो, इन सारी चीजों के लिए ये चीज हमको करना है, तभी हम अपने कन्वर्जन को अप स्केल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये हमारा पर्सोना हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि हम एक लीड को क्वालिफाई कैसे करवाएं, हम उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो उसके लिए ये समझना हमको जरूरी है कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं क्या वो डिसीजन मेकर है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ये है कि हमको एक विंडो आता है, एक अपॉर्चुनिटी आता है कि हम अपने ऐड को फोकस करें, हम अपने ऐड को किसी को दिखाएं। अब जब वो देख रहे हैं तो देखने वाला क्या डिसीजन मेकर है या डिसीजन मेकर इन्फ्लुएंसर है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को 18 इयर्स के टीनेजर को उसकी एक XYZ रिक्वायरमेंट है, एक टीनेजर लड़के को रिक्वायर्ड है कि वो बाइक परचेज करना चाहता है। तो अब डिसीजन मेकर तो उसके फादर हो सकते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसर यहाँ पे ये होगा कि जो परसिस्टेंटली कौन सा बाइक का मॉडल चाहिए उसको, ठीक है, उसको पैशन चाहिए या दूसरा मॉडल चाहिए, उसको इनफील्ड चाहिए या क्या चाहिए, ये जो है ये इन्फ्लुएंसर कौन होगा, यानी डिसीजन, पैसा फंड कौन कर रहा है, फादर फंड कर रहा है, लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है कि मुझे कौन सा बाइक चाहिए, किस कलर का बाइक चाहिए, किस माइलेज का बाइक चाहिए, वो डिसीजन ले रहा है। यानी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाला या डिसीजन मेकर, ये दोनों को अगर अपना एड टारगेट कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका लीड बहुत आसानी से क्वालिफाइड हो जाएगा। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपने एडवर्टाइज किया, फॉर एग्जाम्पल बेबी प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ, बेबी प्रोडक्ट है, आपने एडवर्टाइज किया मेल मेंबर को, वो क्या होगा, हाँ यार ये देखने में सही है, वो जाके फाइनली बात करेगा अपनी वाइफ से, वो बात करेगा। अब वाइफ कहेगी मैं जानती हूं कि इसका ये आउटकम है, इसका ये होता है, ये होता है, ये होता है, इसलिए ये बेहतर है या ये इससे ज्यादा बेटर दूसरा प्रोडक्ट है। तो इवन इफ आपने उसको लाइक किया बट आप इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो, आप डिसीजन मेकर भी नहीं हो, आप सिर्फ मनी पेयर हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन सर्टेन सिनेरियो, दूसरे सिनेरियो के अंदर ये है कि वो खुद परचेज कर सकती है, राइट। सो हमें क्या करना है, जो 3 लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है, एक तो डोर ओपनर कौन है, यानी किसके जरिए से आप राइट डिसीजन मेकर तक पहुंच सकते हैं, उनको हमको टारगेट करना है। दूसरा इन्फ्लुएंसर कौन है, तीसरा डायरेक्ट डिसीजन मेकर। ये हमारा हो गया कि हमारा लीड कैसे राइट काइंड ऑफ पीपल तक पहुंचे। दूसरी चीज जो हमको देखना है वो ये देखना है कि उनका इंटेंशन बाई करने का है या बस ऐसे ही रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी 1 महीना पहले वीवो फोन परचेज किया है, अब मैंने फिर देखा नया मॉडल आया है, यार देखते हैं आईफोन का कौन सा मॉडल आया है। सो मैंने अभी 1 महीना पहले परचेज किया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं इमीडिएटली 1 महीने के बाद मैं इसको स्क्रैप करके नया फोन नहीं परचेज करूंगा। तो मेरा बाइंग पावर, अगर मैंने ऑनलाइन परचेज किया है तो, और फेसबुक पे हमने ऐड देखा, उसको क्लिक किया, उसके बाद परचेज किया है, या फिर हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परचेज किया है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे हमने परचेज किया है, तो अगर आप इस महीने में आप मोबाइल फोन परचेज किए हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ आपको मोबाइल फोन के एड्स फेसबुक
फ्लिपकार्ट या अमेजोन आपको पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि वो भी समझ रहा है, उसका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंजन का है वो ये समझ रहा है योर रिक्वायरमेंट इज नॉट बाइंग अ मोबाइल फोन बट कुड बी बाइंग एन एक्सेसरी। ठीक है, तो अगर आप फिर भी सर्च कर रहे हैं तो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म इस चीज को समझता है कि यू आर अ सीरियस बायर और यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर द सेक ऑफ इट। तो अगर सीरियस बायर है तो आप देखेंगे कि आपको एड का जो रिस्पॉन्स है, एड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। whereas you are casual searcher then probably it won't happen। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्रोडक्ट से जो गेन होने वाला है, यूजर को जो गेन होने वाला है, वो आप कन्विंस करके समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं कि वेदर योर प्रोडक्ट और सॉल्यूशन इज और सर्विस इज पेन रिजॉल्वर और गेन क्रिएटर। क्या है, क्या उससे फायदा पहुंचने वाला है लोगों को या उनकी कोई बहुत बड़ी तकलीफ दूर होने वाली है। तो अगर ये तीन चीजों के अंदर अगर हम प्रॉपरली इसको हम डिफाइन कर लें तो हमारा क्वालिफाइड लीड के पैरामीटर को हम अच्छी तरह से डिक्टेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास नॉर्मली ऐसे होगा कि 100 लीड आएंगे तो हम बात करते हैं कि यार कन्वर्जन क्या होगा, तो 2% कन्वर्जन हो जाता है तो बहुत है। बट जब आप अपने मैट्रिक्स को डिफाइन करते हुए चले जाते हैं, रिफाइन करते हुए चले जाते हैं, तो आपको भले 20 लीड्स आए लेकिन आपका कन्वर्जन जो है 5, 6, 8, 10 हो जाता है, तो आप कहते हैं कि हमारा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। ये कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं है, ये आपने टाइम स्पेंड किया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि आप अपने क्वालिफाइंग मैट्रिक्स, लीड के क्वालिटी पैरामीटर, ऑडियंस, एज ग्रुप, सेगमेंट, लोकेशन, सब कुछ को आपने डिफाइन किया, तब जाके वहां तक आपको एक रिजल्ट ओरिएंटेड लोगों को ये समझ में आने लगा कि इन लोगों को अगर आप टारगेट करेंगे तो उनका या तो उनको सॉल्यूशन मिलेगा, कोई ना कोई उनको एक नया सॉल्यूशन मिलेगा या उनकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो अगर आप गेन क्रिएटर हैं या पेन सॉल्वर हैं तभी आपका प्रोडक्ट इजीली एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ओकेजनली एक्सेप्ट होगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि क्यों किसी प्रोडक्ट को एक ही तरह की कंपनी है, एक ही सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा है, बट एक का सेल बहुत अच्छा होता है, दूसरे का सेल कम होता है। रीजन ये है कि ये डिफाइनिंग पैरामीटर में एक बहुत स्ट्रांग होता है, दूसरा बहुत वीक होता है। इसलिए हमको क्वालिफाइंग मैट्रिक्स पैरामीटर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। Any questions so far so that I will be able to take it off or No, this is fine. I think all right, pretty okay. elaborate up. all right. Now जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम ये है कि भाई जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि लीड्स हम 3 तरह के लीड्स में हम डिफाइन करेंगे कि एक कोल्ड लीड है, एक वार्म लीड है, एक हॉट और क्वालिफाइड लीड है। कोल्ड लीड किसको कहेंगे, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए सो दैट हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर लें। कोल्ड लीड उसको है कि फॉर एग्जांपल एक ग्रेजुएशन में बीटेक का कॉलेज है, वो एडमिशन वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। उसने क्या किया, जो मार्केट में नॉर्मली होता है कि इंटरमीडिएट पास करने वाले या इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट का डेटाबेस उनको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। अब उसमें से कॉलिंग शुरू हो जाती है, राइट। तो ये जो लीड मिला है, यानी हर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट ग्रेजुएशन में जाएगा, हर मैथमेटिक्स या बायो लेने वाला स्टूडेंट या तो इंजीनियरिंग की तरफ या मेडिसिन की तरफ या रिलेटेड फील्ड में जाएगा। जो सीईसी कंप्यूटर या कॉमर्स और सिविक्स या आर्ट्स लिया हुआ है वो उस स्ट्रीम में जाएगा, राइट। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का ये जो रॉ डेटा मिल गया आपको, लाखों लाख में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा जो मिल जाते हैं, ये कोल्ड लीड्स हैं। ये पता नहीं इसमें से क्या परसेंटेज आपके लिए वर्कआउट होगा, क्या परसेंटेज वर्कआउट नहीं होगा, ये कोल्ड लीड्स। वार्म लीड क्या हुआ, आपने कॉलिंग किया, मेलिंग किया, व्हाट्सएप किया, उसमें से जो थोड़े से पूछे कि भाई क्या है, कैसे पैरामीटर है, क्या है, कौन कौन सा स्ट्रीम है, क्या क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स है, वो सारी चीजें आपको पूछा तो वो वार्म हो गया। तो वार्म और कोल्ड को आपने हटा दिया। तो जो एक अनटारगेटेड लोगों के डिटेल्स आपके पास हैं वो कोल्ड लीड है। जो टारगेटेड हैं, थोड़े से आपने पैरामीटर डिफाइन किया है, उसके हिसाब से उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, वो वार्म लीड्स हो गए। हॉट और क्वालिफाइड लीड्स हम सब जानते हैं जो कि कन्वर्जन के करीब हो, राइट। तो जो लीड, ये लीड के क्वालिटी जो है हॉट, कोल्ड और वार्म जो है,
ये बजट के ऊपर डिफाइन करेगा कि भाई उसको अफोर्डेबिलिटी है ही कि वो 20,000 रुपीज पर एनम फीस को ही सिर्फ अफोर्ड कर सकता है कोई आदमी, कोई है कि जो 4 लाख फीस को भी अफोर्ड कर सकता है। तो बजट के हिसाब से वार्म और कोल्ड हो सकता है। दूसरा टाइम स्केल है, यानी अभी एडमिशन ले रहा है या उसका एक कंपार्टमेंट आ गया, उसका एक कोई इंप्रूवमेंट है या कुछ भी है, तो थोड़े टाइम के बाद होगा। उसकी नीड है या नहीं है, वो किस स्टेट में लेना चाहता है, किस स्ट्रीम में लेना चाहता है, कभी कभी उस कॉलेज में लेना चाहता है लेकिन उस ब्रांच में वो अवेलेबल नहीं होता है, सीट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वो हो जाता है। और उसी तरह से ये सारी चीजें अगर हमारी डिफाइन हो गई और वो फिट हो गया, जो रिक्वायरमेंट है वही सॉल्यूशन से फिट हो गया, तो दैट बिकम्स योर सेल, एंड दैट इज व्हाट वी आर एमिंग एट फॉर डिस्कसिंग ऑल दीज kind of leads or variety of leads that we are talking about. अब ये लीड्स जनरेट कैसे किए जाएं, जो कि जिसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये लीड, जैसे ही हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सर्च इंजन, बोलते के साथ गूगल आ जाता है। अब तो हम ये भी नहीं कहते कि सर्च इंजन पे जाके सर्च करो, अब तो सीधा ये कहते हैं कि गूगल क्या क्या, आप गूगल कर लो, ठीक है, राइट। सो गूगल बिकम सिनोनिम ऑफ सर्च इंजन, राइट। तो सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक जनरेट होता है, सीरियस बिजनेस ट्रैफिक जो जनरेट होता है, वो गूगल के ऊपर होता है। ये कोई डेटा भी होगा, अदरवाइज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को वैलिडेट करेंगे कि ज्यादा सीरियस और सेल्स ओरिएंटेड जो सर्चेज होते हैं वो गूगल पे होते हैं। अब गूगल पे कितने तरह के सर्चेज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लें। एक तो नॉर्मल सर्च ऐड होता है कि गूगल पे गए, हमने कोई कीवर्ड डाला, वहां पे रिजल्ट आ गया। दूसरा कॉल के टाइप का होता है कि अगर आपने मोबाइल फोन पे अगर आपने सर्च किया तो वहां पे एक फोन नंबर भी आ जाता है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक किए तो डायरेक्टली कॉल कनेक्टेड हो जाता है। वेयर एज डेस्कटॉप या लैपटॉप में कॉल वाला ऑप्शन नहीं आता है, वहां से फोन नंबर लिखा रहता है। तीसरा है डिस्प्ले ऐड, यानी टेक्स्ट के अलावा अलग अलग गूगल के नेटवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अलग अलग बैनर्स दिख के आएंगे, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप ट्रू कॉलर पे जब कॉल करते हैं तो वहां पे कोई एक दूसरे कंपनी का बैनर दिख के आता है। आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आप अपने एंड्रॉइड फोन पे खोलें तो वहां पे भी आपको ऐड दिख के आता है। तो ये सारे डिस्प्ले ऐड थे। अब ये डिस्प्ले ऐड कहाँ से आता है, क्या सोर्सेज है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट डिस्कशन है, दैट वी विल डिस्कस इट। वीडियो एड्स हम सब जानते हैं, यूट्यूब जब देख रहे होते हो तो उसमें नीचे टेक्स्ट ऐड आता है, स्किपेबल ऐड आता है, नॉन स्किपेबल 5 सेकंड में आप स्किप कर सकते हैं, 10 सेकंड तक आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये वीडियो एड्स के ऑप्शन हैं। तीसरा ऐप एड्स, आप स्विगी, जोमेटो, ओला या ट्रू कॉलर या कोई और ऑप्शन, कोई और यात्रा.com या दूसरे कोई ऐप को जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे भी एड्स आते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं गूगल के जरिए से, जहां के आप एड से अपने टारगेट ऑडियंस को रीच कर सकते हैं और वहां से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ये प्योरली गूगल से रिलेटेड हो गया। यूट्यूब पर भी जो एड्स आते हैं वो गूगल मैनेज्ड ही होते हैं, और गूगल के नेटवर्क वेबसाइट्स भी हैं, लैक्स एंड लैक्स ऑफ नेटवर्क वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल के एड्स को डिस्प्ले करता है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कंटेंट दे हैव, राइट। तो उस तरह की चीजों को हम वहां देख सकते हैं। ब्लॉग पे उसके एड्स आ जाते हैं, गूगल के एड्स आते हैं, किसी दूसरे पोर्टल पे आ जाते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, या आप ई कॉमर्स पे कुछ सर्च कर रहे हैं और किसी और वेबसाइट पे गए तो वहां पे दिख के आ जाता है। आप यात्रा.com या इंडिगो पे जाके आपने कोई फ्लाइट टिकट सर्च किया है और आप कुछ और ब्राउज कर रहे हैं तो पता चला वही डेस्टिनेशन के आपको एड्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के डिस्प्ले एड्स हैं, अलग अलग तरह के एड्स हैं जो कि गूगल के जरिए से पुश होके वहां पे पहुंचते हैं, राइट। तो एक एड जो लीड जनरेट करने का है, सोर्सेज ऑफ लीड्स है, वो एक जो है बहुत ही रिमार्केबल और बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स है, वो है गूगल। दूसरा है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स के अंदर बहुत तरह के एड्स होते हैं, यानी आप बूस्ट कर सकते हैं फॉर रीच, आप फेसबुक पेज को प्रमोट कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग मोर नंबर ऑफ फॉलोअर्स, आप ब्रांड बिजनेस लॉयलिटी, ब्रांड लॉयलिटी को आप प्रमोट कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिटर्स लेके आ सकते हैं, या फिर लीड जनरेशन कैंपेन करके वहां पे लीड्स जनरेट कर सकते हैं। अब तो ऑप्शन आ गया है कि है फेसबुक पे कि आप वहां पे आप अपने स्टोर को क्रिएट करके वहां पे आप शॉपिंग एड्स भी कर सकते हो, जहाँ पे लोग परचेज कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को आपके फेसबुक पेजेस से। रिसेंटली एक अपडेट आया है कि व्हाट्सएप इज ऑल्सो गोइंग टू गिव सम ऑप्शन, जहाँ की अगर आप लिंक शेयर करते हैं तो वहां से भी आपको शॉपिंग के
प्लेटफॉर्म पे जाता है, बट वो अभी बहुत ही निश एरिया में है, बहुत ही अर्ली स्टेज पे है, राइट। तो ये हमारा फेसबुक से रिलेटेड है। उसी तरह से लिंक्डइन के अंदर पेड कैंपेन कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं, या लिंक्डइन के अंदर आप सेल्स नेविगेटर एक ऑप्शन आता है, जो अगर आप लेते हैं तो लीड जनरेशन के लिए आपको कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डिसीजन मेकर तक पहुंच सकते हैं। तो लिंक्डइन का आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। या फिर अगर आप एचआर रिक्रूटमेंट के अंदर हैं तो आप रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो लिंक्डइन का ऑप्शन है वो अगर आप लेते हैं तो आप अलग अलग प्रोफाइल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं या लोगों तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये लिंक्डइन का हो गया। उसी तरह से ईमेल मार्केटिंग है कि अगर आपके पास डेटाबेस है, लैक्स एंड लैक्स यूजर्स का डेटाबेस है, तो आप उनको ईमेल सेंड करके आप उन तक पहुंच सकते हैं। अब ये ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा? पॉपुलरली या तो ईमेल चिंप यूज करते हैं, या फिर कुछ लोग जो 500 के नेटवर्क में 500 के लॉट में अगर भेजना चाहें तो गूगल का भी जो जीमेल का प्लेटफॉर्म है, उसको जीमेल है उसको भी यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज करके आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईमेल्स आप रेगुलरली भेज सकते हैं। नेक्स्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल माई बिजनेस या फिर गूगल मैप के ऊपर जो ऑर्गेनिक पोस्टिंग्स रहते हैं, ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स रहते हैं, विदाउट एनी पेमेंट जो लिस्टिंग्स आते हैं वहां से लीड जनरेट होते हैं। नेटवर्किंग है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल नेटवर्किंग जो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर नेटवर्किंग होता है। अब तो खैर वो चीज खत्म हो गया है ये कोविड और लॉकडाउन के अंदर, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे एक प्लेटफॉर्म है BNI है, या और भी सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, दे कीप ऑन डिस्कसिंग कॉमन टॉपिक, कॉमन एजेंडा ऑन वेरियस जूम मीटिंग और वेबिनार एंड ऑल। तो आप उस तरह के नेटवर्क पे भी जाके अपने जो नेटवर्किंग और क्लाइंट रेफरल्स वहां से ले सकते हैं, राइट। ओल्ड स्कूल स्मॉल बिजनेस लीड जनरेशन, मतलब जो भी पुराने पैटर्न थे कि आप सर्वे करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, वहां से आप लीड जनरेट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप किसी लीड जनरेशन वाले एक्सपर्ट को हायर करते हैं कि वो आपको लीड जनरेट करके देता है, उसके बाद की चीजें आप करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस में आपको जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो सबके एनालिटिक्स को ट्रैक करना है कि कौन सा आपको ROI में कन्वर्ट करता है, कौन सा आपके ROI में कन्वर्ट नहीं होता। यानी किसमें टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है, किसमें रिजल्ट कम आता है, किसमें कॉस्ट पर एक्विजिशन आपका अच्छा है यानी कम से कम है, भले एफर्ट्स ज्यादा पड़ रहे हैं लेकिन कॉस्ट पर एक्विजिशन कम है, जेन्युइन सेल होता है, बहुत रिजनेबल सेल होता है। तो ये सारी चीजें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको अपने बिजनेस और आपको अपनी इंडस्ट्री के लिए खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा और खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं कि दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू गिव रिजल्ट इन दिस फॉर्मेट। कोई प्लेटफॉर्म एक दूसरे से सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। फैक्ट ये है, एक आपको अलग तरह का रिजल्ट देगा, दूसरा आपको दूसरी तरह का रिजल्ट देगा। फेसबुक कैसे काम करता है वो थोड़ा सा रिकैप है, हम इसके डिटेलिंग में भी जाएंगे और हम इसको अलग अलग तरह से हम इसको देखेंगे, राइट। तो फेसबुक के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हैं, आप फॉलो करा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप में जाके आप ज्वाइन करें, नेटवर्किंग करें, वहां कमेंट करें, बिहेव एज इफ यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एंड देन अगर आप हैं तो आपके नॉलेज से पता चलता है, नहीं है तो भी बिहेव करना शुरू करिए। बहुत सारी चीजें हमारे बिहेवियर से भी बहुत सारी चीजें हमको सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, राइट। तो उस तरह के प्रोफाइल, उस तरह के क्वेश्चन आंसर, कोरा इज ए वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आप जाके कर सकते हैं, या फेसबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो है कॉन्टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, लोग आंसर करते हैं और फिर वहां से आप उनके क्रेडेंशियल्स को कैप्चर करके आप फिर उन तक पहुंच सकते हैं, राइट। ये बेसिक सी चीज है कि भाई कितने तरह के एड्स होते हैं जिस जरिए से हम फेसबुक के ऊपर हम लीड जनरेट कर पाएंगे। इसका डिटेलिंग हमने कुछ किया हुआ है, कुछ और हम करेंगे, राइट। नेक्स्ट आते हैं लिंक्डइन के ऊपर, जो कि हम बार बार ये कहा जाता है कि B2B, फेसबुक could be good for B2C, Google could be good for B2C as well, whereas LinkedIn the best for B2B। तो अगर आप सर्विस ओरिएंटेड कंपनी हैं और डिसीजन मेकर तक पहुंचना चाह रहे हैं, या बल्क में कोई चीज करना चाह रहे हैं, प्रोक्योरमेंट हेड से साथ बात करना चाह रहे हैं, या आप समझना चाह रहे हैं कि यू वांट टू अट्रैक्ट राइट ऑडियंस, देन LinkedIn is the best platform,
by which we can run various campaigns and then reach to the people. LinkedIn कैसे, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने प्रोफाइल को हॉट प्रोफाइल बनाएं. Yes, hot means hot in the sense likable by people, get attracted by people. Add connect to your networks, ये आपको रेगुलर करना है. ऐसा नहीं है कि एक दिन किया आपने 100 को इनवाइट भेज दिया, लिंक्डइन ने आपको ब्लॉक कर दिया, वैसा नहीं करना. हर दिन अगर आपको 10 करना है, टाइम निकालिए, पहुंचिए लोगों तक. इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कीजिए, बिजनेस ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट कीजिए, प्रोफेशनल्स को सर्च कीजिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, आप अपने केस स्टडीज को शेयर करिए, आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो भी एक इंडस्ट्री ट्रेंड है उसके बारे में कुछ लिखिए, आर्टिकल लिखिए, शेयर करिए. और ये सारी चीजें आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं, आपके लिए विंडो ओपन करती हैं कि आप लोगों के अटेंशन में आप आना शुरू हो जाते हैं. राइट, तो ये क्या कर सकता है, हम डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड, फॉलो कंपनी, स्पॉन्सरशिप, इन-मेल, लीड जनरेशन, ये अलग अलग पैटर्न है जिसके ऊपर हम कर सकते हैं. ठीक है. कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. कम्युनिटी बिल्डिंग और लीड जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉमन काइंड ऑफ पीपल या उस तरह के इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि हर सिटी को लेके स्टार्टअप नेटवर्क है, हर सिटी को लेके एमएसएमई नेटवर्क है, हर सिटी को लेके उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर इंडस्ट्री ओरिएंटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अलग होगा, ट्रैवल से रिलेटेड अलग होगा, बाय एंड सेल से रिलेटेड अलग होगा. तो उस तरह के प्लेटफॉर्म्स को या कॉमन इंटरेस्ट पीपल, कॉमन कम्युनिटी इंटरेस्टेड पीपल, उस तरह के ग्रुप्स को या तो आप ज्वाइन करें या आप खुद ग्रुप एडमिन बन सकते हैं और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जहां के thousands and thousands of people will join. Once you have good number of people in your group, आप जो भी पोस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली हजारों लोगों तक पहुंचेगा, आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत कम होगा और आप लीड्स बहुत अच्छा जनरेट कर पाएंगे. जो ज्यादातर मिसिंग होता है, हम सब काम कर लेते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर, लेकिन हम कम्युनिटी बिल्डिंग अपने लिए कोई एक ग्रुप या कम्युनिटी बिल्डअप करें जहां स्लोली थाउजेंड्स ऑफ पीपल को आप ज्वाइन कराएं, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो सकता है, वो एक सिटी के इश्यूज को डिस्कस करने वाला हो सकता है, या बाय एंड सेल के बारे में हो सकता है, या करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हो सकता है, या ओवरसीज मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में हो सकता है. जिस चीज के बारे में भी आप चाहें, जहां लगता है कि आपके राइट ऑडियंस कस्टमर्स हो सकते हैं उसके ज्वाइन करने वाले, उस तरह के ग्रुप को क्रिएट करिए सो दैट लोग जब आपको ज्वाइन करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनको ऑफर कर सकते हैं. तो दिस इज द चीपेस्ट बट वेरी इफेक्टिव मेथड दैट यू बिल्ड सम कम्युनिटी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया क्या करता है, ब्रांड अवेयरनेस, ट्रैफिक बढ़ाता है, रिलेशन बिल्ड करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी जैसे मैंने कहा मेल, फीमेल, एज ग्रुप, जो क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं और आप फाइनली सेल्स को ड्राइव कर सकते हैं. स्मॉल बिजनेसेस सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 70% ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस दे डू ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी और ब्रांड अवेयरनेस एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया. उनके लिए ये सबसे चीपेस्ट प्लेस है. ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीपल दे डू सेल्स और लीड जनरेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. 48%, 50% इंक्रीज कम्युनिटी एंगेजमेंट. ठीक है. 46% ऑफ पीपल ग्रो ब्रांड ऑडियंस, जो ब्रांड का ऑडियंस है उसको ग्रो करने में वो यूज करते हैं. ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पीपल दे जनरेट ट्रैफिक फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो आप सोचिए मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सो व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट इज नॉकिंग टू आवर डोर. ऑफ कोर्स डायरेक्ट मैसेजिंग जो आपके लिए प्लेटफॉर्म है. गूगल में भी आप मैसेजिंग, आपके पास गूगल माय बिजनेस में भी मैसेजिंग का ऑप्शन है. हैंगआउट हम सब जानते हैं, जो कि अब धीरे धीरे हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीच टू द पीपल यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स. आप डायरेक्ट उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर लिंक्डइन का मैसेंजर यूज कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, फेसबुक का मैसेंजर यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, फॉलो और लाइक योर पोस्ट इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं. So these are very few but prominent and free of cost. ये free of cost activity है, right? आपको क्या करना है, आपको टाइम डिवोट करना है और आपको ये सारी चीजें करना है. और लास्ट में ये है कि भाई आप कुछ शॉर्ट वीडियोस आप शूट करें, चाहे वो आपके क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, केस स्टडी हो सकता है, और उसको वायरल करने की कोशिश करें, लोगों तक पहुंचाएं. Google gives you an option to upload a video on a very frequent basis.
गूगल माई बिजनेस पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक आपको अपॉर्चुनिटी देता है, ट्विटर देता है, लिंक्डइन देता है, और रिव्यूज आप अपने गूगल रिव्यू पे, फेसबुक रिव्यू पे, या जैसे भी आप रिव्यूज ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करें, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स व्हिच हेल्प्स यू टू क्रिएट ऑथेंटिसिटी दैट यस यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड देन people should opt for you, right? Last but not the least, be as vocal as possible but don't be spammy. यानी जितना आप अपने बारे में अच्छा बोल सकते हैं आप बोलिए, लेकिन स्पैम मत कीजिए कि वो आपका ऑडियंस है तो भी भेजिए, नहीं है तो भी भेजिए। वन एंड ऑल के लिए वो मत कर दीजिए कि हर एक माल 7 रुपए, हर एक माल 10 रुपए वाला काम मत करिए। ये ऐसा है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें एंड बी एज वोकल एज पॉसिबल। You keep announcing things on all social media platforms. No one is going to stop you, but for sure, eventually, audience will start listening you. So once they start listening you, they will start approaching. Once they start approaching, sales will happen. Then we have email marketing, जो कि हम सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ईमेल मार्केटिंग जो कि चीपेस्ट एंड द इकोनॉमिक वे ऑफ लीड नर्चरिंग है, वो हम नहीं डिस्कस करते हैं। बट हम इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट डेज हम ईमेल मार्केटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम अपने कस्टमर्स को डिफाइन करें, ऑब्जेक्टिव सेट करें, फिर सेगमेंटेशन करें हम, यानी हर ईमेल आईडी के लिए जो आपका ईमेल आईडी है उसको सेग्रीगेट करें, फिर उसके लिए एक अलग तरह का मैसेजिंग क्रिएट करें, उनको भेजें, आप उनके डेटा को एक्वायर करें, फिर नर्चर करें, सेगमेंट करें, एनालाइज करें। जो लोग आपके ईमेल को नहीं ओपन कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं उनको रिमूव करना शुरू करें, सो दैट आपका मेल स्पैम ना हो। और जब आप ये कंटिन्यूस करेंगे तो आपको ये 1000, 2000, 5000 या 10,000 जो बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस निकल के आएंगे वो आपको बिजनेस देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि एसएमईज के अंदर जो हम इवेंचुअली इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। गूगल लीड जनरेशन हम सब जान रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है, अट्रैक्ट है, कन्वर्ट है, क्लोज है, डिलाइट है, यानी एक पूरा साइकिल है। हम पहले टारगेट करेंगे स्ट्रेंजर्स को, वो विजिटर में कन्वर्ट होंगे, वो लीड में कन्वर्ट होंगे, वो कस्टमर बनेंगे, और फिर जो रिव्यू आएगा वो फिर हमारे लिए रीऑर्डर के लिए ऑप्शन बन जाएंगे। सो दिस इज अगेन सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ गूगल लीड जनरेशन प्रोसेस। ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डाला है। यानी जस्ट डायल के पास भी बहुत सारा डेटा है, गूगल माई बिजनेस के पास भी बहुत सारा डेटा है, राइट। तो कुछ फ्री टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपको हेल्प करता है कि उनके नंबर्स या ईमेल आईडीज को आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब मान लें कि जस्ट डायल के जो नंबर्स हैं वो मास्क नंबर्स होते हैं, बट फिर भी आपको कुछ जेन्युइन नंबर्स वहां से निकल जाते हैं। बट गूगल माई बिजनेस के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो कोई मास्क नंबर्स नहीं होते। तो अगर इस तरह के टूल्स को आप यूज करते हैं तो आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेटा आप निकाल सकते हैं विदाउट कॉस्टिंग इट मच। आप कीवर्ड बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, एरिया बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड आप डेटा ग्रैब कर सकते हैं और उनको अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ आप यूज कर सकते हैं। हम कौन सा टूल यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी हम बताएंगे। ईमेल मार्केटिंग के लिए स्टेप है, आप देखें कि 2000 मेलचिम्प के बारे में मैं स्पेशली डिस्कस करता हूँ कि 2000 तक का अगर आपके पास डेटाबेस है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेलचिम्प को यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव लैंडिंग पेज वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, आप कंटेंट बेस्ड पेज क्रिएट कर सकते हैं, HTML में कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आपको किसी नॉलेज की जरूरत, टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें आपको क्या होगा, आप ये लिंक को आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, जहां भी शेयर कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये क्या करेगा, आपको लीड जनरेट करके देगा। जब लीड जनरेट करके देगा तो ऑब्वियसली आपका फॉलोअप आसान हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मेलचिम्प। हम डिटेल करेंगे जब हम मेलचिम्प के बारे में पढ़ रहे होंगे, इन मे बी टुमारो और डे आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, राइट। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब क्या हुआ, आपका सेल्स फनल बनना शुरू हो जाएगा, और फिर वो जितना वाइडर होगा उतना ही ज्यादा आपका कस्टमर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो सेल्स फनल भी हमको बनाना है और क्वालिफाइड फनल भी बनाना है। ऐसा ना हो कि हम जेनरिक फनल बनाएं और फिर हम एग्जॉस्ट हो जाएं, उन डेटा को रिफाइन करते करते ही हम एग्जॉस्ट हो जाएं, राइट। तो हम इस चीज को वर्कआउट करें। देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म जहाँ के आप फनलिंग कर सकते हैं अपने लीड्स को। हम उस प्लेटफॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो अपने सारे डेटा को एक जगह कोलेट करें, उसको कंटिन्यूसली रिव्यू करें, और फिर ये देखें कि किस तरह का डेटा आपको सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। लास्ट आज के सेशन के लिए
कि हमको जो करना है, यानी बिफोर वी स्टार्ट लीड जनरेशन प्रोसेस, जो हमको करना है वो ये है, यू लिस्ट डाउन हाउ डिफरेंट यू आर फ्रॉम अदर्स। ये हमको प्रॉपरली लिस्ट डाउन करना है अपने हर कस्टमर के लिए। अगर आप एक एजेंसी के लिए काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हाउ योर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आउट ऑफ ऑल मीडिया, व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू? फेसबुक, गूगल, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट वर्क्स फॉर यू? टेक ए सिंपल स्टेप्स एट ए टाइम। हर चीज एक साथ शुरू मत कीजिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज, बजट विल गेट एग्जॉस्टेड and ultimate result will be nullified. Don't rush, in the sense don't get spammy. आप बेचैन मत हो जाइए, आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल मत होइए, आप जो है कंफर्ट पेशेंस के साथ आप काम करिए। यूज सिंपल टूल, डू इट रेगुलरली, डोंट गेट स्केर्ड, एक्सपर्ट्स आर अराउंड। कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो लोग आपके आसपास अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट करें, सॉल्यूशन लें, एंड देन यू विल बी एबल टू डिफाइन इट, राइट? सो of course whatever we are discussing about mobile is ultimate thing, तो हमारा हर कैंपेन मोबाइल बेस्ड कैंपेन अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, राइट? हम लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया कि ये कुछ सैम्पल्स हैं कि जहां आप नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उनके व्हाट्सएप नंबर, सो अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं। आप कॉर्नर, एक्सट्रीम कॉर्नर में देखेंगे तो कौन सा ट्रैफिक, कौन सा लीड आपको, कौन सा कैंपेन आपको कितना ट्रैफिक जनरेट किया है, क्या किया है, तो ये सारे इनसाइट्स हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, और आप एक्सपीरियंस भी करेंगे इन चीज़ों को, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट फॉर टुडेज सेशन. We will be discussing it. I have taken little longer time of yours, but we'll be discussing it in detail, every topic, and then we'll be taking it practical aspect of it as well, right? So over to all of you. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज है तो आप पूछ सकते हैं, so that I'll be happy to answer. Sir, it was fantastic session we had so far. Thank you. Really enjoyed, sir, and very knowledge sharing. अब इशू ये है प्रशांत जी, प्रैक्टिस भी तो करना है सर। वो तो कर ही रहा हूँ रोज सर। आज भी वो वेबसाइट पे काम कर ही रहा था सर। मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं सर, मतलब नहीं, वही चीज, वही जस्तुजी होनी चाहिए। I will be with you and I will complete each and everything. No problem, no problem. Right? किसी और का कोई क्वेश्चन है? अंश हैं, दीपक हैं, गौरव, अभिनव, रोमिता, any questions? Or we'll end our session for today and then we'll join at the same time tomorrow. तो आज हम लोग अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर, ठीक है? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज भी आप हमको रीच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का सेशन जो हुआ है, ये रिकॉर्डेड सेशन मैं आप लोगों को थोड़ी देर से, एक 45 मिनट्स के बाद में भेज दूंगा, सो दैट जब भी रेफरेंस हो तो आप देख सकते हैं इसको, एंड वी विल बी डूइंग इट रेगुलरली, राइट? सो वी आर टेकिंग एन ऑफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, और पेशेंटली आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर कल मिलते हैं, राइट? टेक केयर। ऑल राइट गाइस, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Good night. गुड नाइट।